Hi students, chapter name is business service and today we have we will be starting the business service in that function of banking, that is a secondary function. Last lecture में हम लोग ने देखा कि प्राइमरी फंक्शन क्या था. There is a two primary function, accepting deposit and granting the loans and advances. Now secondary functions में भी दो चीज़ें, A है एजेंसी फंक्शन and B है utility functions. So function of banking, functions of banking, you can say commercial banking. Commercial bank, three is there. One is primary function and second is a secondary function. In that primary function there is a two part, A and B, accepting the deposits, and second is granting the loans and advances. और B में that is a two part, A and B. ये आपका ये A समझो और ये B. उसी में इसमें दो चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी फंक्शन, and second is a utility function. Now agency functions, today we are going to start this bank is one kind of agent. They are coordinating between you and your money with your RBI. So bank is the one kind of coordinator. So you can say the secondary function is that first of all, first point, commercial bank as an agent, a representative of the client and perform the certain function, and that is first of all you can say periodic collection and payment. Periodic means maybe weekly, maybe monthly, maybe quarterly, maybe 6 monthly, or maybe yearly. So these collection and payment will done by the bank, and that given the facility. Commercial bank collect the salary from treasury, your payment for salary, dividend also, interest also, and another income periodically as well as total payments such as taxes, bill, premiums, rent. मीन्स टैक्स भी कलेक्ट करती है, प्रीमियम भी कलेक्ट करती है, और स्टैंड रजिस्ट्रेशन रहेगा तो प्रीमियम पे भी करती है ऑन द स्टैंड रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड बाय द कस्टमर. एंड कमर्शियल बैंक चार्ज सर्टेन फिक्स अमाउंट quarterly, annually, from the form of service charges from customer providing such a service, and the bank will charges that. Now you have your ATM with you, debit card is with you, then credit card with you. They are charging the annual some fees. That means from your 17 rupees or 20 rupees as per the decided by the RBI with that commercial bank. They are charging amount something. They are deducting from your saving account or current account. So they are given the facility because they have the function of agency like that. Now portfolio management is one of the important service given by the bank. Large commercial bank undertake the purchase and sell the securities. This many of the banks has one kind of management have वो शेयर को परचेज और सेल करते हैं, बॉन्ड्स को या डिबेंचर को परचेज और सेल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. मीन्स क्लाइंट इज नॉट हैव अ टाइम, सो क्लाइंट ने बैंक को दे दिया और बैंक उसको अपने हिसाब से शेयर टू सेल परचेज करता है. सो दीज हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और ये हैंडलिंग करना इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं. ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट इज ऑप्टिंग सच सर्विस ऑफ कमर्शियल बैंक. और ये सब बहुत सारे लोग करते ही हैं. अपने पास शेयर में पैसा डाल दिया है, कोई इंट्राडे में करता है यानी दिन में शेयर को बेचता है और खरीदता है, कोई डिलीवर करता है यानी ठीक है आज हमने शेयर खरीदा है तो 2 दिन के बाद मैं इस शेयर को बेचूंगा जब तक इतना बेच मांगा. तो ये सब चीज़ें के लिए
हमको लेके बैठना पड़ता है सैलरी प्राइस कितने, टर्म हो रही स्टॉक एक्सचेंज में क्या उसका रेट है, ये सब तो बैंक को हम लोग दे देते हैं और बैंक उसको अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करता है और चार्जिंग द सर्विस यार उसका फीस हमको क्लाइंट को देना पड़ता है। तीसरा है एजेंसी फंड। थर्ड इज दैट फंड ट्रांसफर। यू नो कॉमर्शियल प्रोवाइड द फैसिलिटी फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। फॉर अनदर ब्रांच कॉमर्शियल बैंक कम टू वेरियस इंस्टीट्यूट टू मैक देयर दोज ट्रांजेक्शन हैसल फ्री। यानी आज आप जाते हो बैंक में NEFT करते हो, RTGS करते हो, IMPS करते हो, ये सारी चीज़ फैसिलिटी कॉमर्शियल बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हो, तो ये सब फैसिलिटी बैंक देता है। Forex dematerializations. Now you know dematerial means shares. Means the shares is in form in electric form. It is not in paperwork. It is digital. So bank provide dematerialization facility their client to hold their securities in electric format. यानी बैंक डिमेटलाइज करता है फैसिलिटी देता है क्लाइंट को एक अपने उसके सिक्योरिटी के लिए होल्ड उसके पास रहता है। बैंक के पास हम जाते हैं, शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है, डिजिटल हो जाता है। On behalf of client, it undertakes electronic transfer of share in case of purchase of share, और on behalf of client के behalf में बैंक क्या करती है, वो एक्ट करती है आपके शेयर्स को खरीदना और बेचना। बहुत सारी देखो अभी ICICI बैंक का है iDirect, हर एक बैंक का अपना अपना है, तो वो बैंक क्या करती है iDirect का एक ऐप ले लेती है, आपको दे दिया और आप उसमें डीमेट अकाउंट खोलोगे और आप उसमें सब शेयर्स के भाव रहेंगे, उस शेयर्स के भाव को रेट देख के आप उसको शेयर परचेज करोगे और फिर अपने अकॉर्डिंग टू अनुसार उसको सेल करोगे। सो दीज आर एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट इन एजेंसी फंक्शन में पांचवा पॉइंट है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। मीन्स फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स इज द एब्रिविएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अ बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अ बैंक परचेज फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट विच क्लाइंट्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन ट्रांजेक्शन एंड सेल द फॉरेस्ट व्हेन द क्लाइंट नीड टू डू ओवरसीज ट्रांजेक्शन। यानी क्या होता है कि अगर बैंक परचेज करती है, क्लाइंट से लेती है, आपके पास डॉलर्स है, आप बैंक को जाते हो देते हो, तो बैंक परचेज करती है क्लाइंट से, रिसीव करती है फॉरेन ट्रांजेक्शन के हिसाब से और बाद में सेल कर देती है क्लाइंट टू नीड टू ओवरसीज ट्रांजेक्शन। यानी अगर ओवरसीज में रिसीव हो चाहिए तो वो सेल कर देती है, इससे आपका फ़ायदा होगा। आपका $1000 आपके पास पड़ा USA का और आपके पास वो आया हुआ है और $1000 आप बैंक को देते हो, तो अगर किसी कंट्री में डॉलर की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक उसको सेल करके उसका मुनाफा उसको मिलता है और आपका मुनाफा उसको मिलता है। तो दिस आर द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एजेंसी फंक्शंस। नाउ यूटिलिटी फंक्शंस में क्या है, अब आपका प्राइमरी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का लास्ट टाइम प्राइमरी फंक्शन हमने दो चीज़ देखा है, सेक्यूरिटी डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग द लोन एंड एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन में 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको भी बताए। कौन कौन से? आई एम रिपीटिंग, प्रिडिक्ट एंड कलेक्शन एंड पेमेंट, portfolio management, fund transfer, dematerializations, forex transactions. These are the 5 things which is very important in agency function. Now utility function. Utility function which is the bank are using on behalf of you or you are using on behalf of bank. So now a commercial bank have utility or benefit of client. इसमें benefit client का ही होता है. It provides certain facility provide or product to his client as follows. First, issue a draft and check. You know very well if you are opening the bank and saving it on in your bank, if any bank. The bank immediately 10 to 15 days in providing the check facility, and then if you want to demand draft, the bank will give the demand draft also. So these are the things which is when you order to pay to money from one branch to another branch of the same bank or other bank issue the draft account holder as well as on new holder, whereas check are issued only to the account holder. Bank charge commission for issuing the draft. If the bank will give the demand draft, then you have to pay the demand draft. बैंक चार्ज विल बी प्रोवाइड। जैसे आपको मान लो HSC बोर्ड का एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो अगर बैंक ने बोला डिमांड ड्राफ्ट चाहिए स्टूडेंट के पास से, तो अगर स्टूडेंट का अगर 500 फीस है और बैंक 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करती है, तो वो जो चार्ज है कमीशन बैंक के लिए प्रॉफिट है, पर आपका डेडी बन जाएगा बोर्ड के नाम से 500 का और 30 रुपीज़ आपको बैंक चार्ज करेगी, तो 30 रुपीज़ बैंक को फ़ायदा होगा। पर आपका यूटिलाइजेशन क्या हुआ कि आपका डिमांड ड्राफ्ट बन गया एग्जाम फी का, आप बोर्ड में जमा करके आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो। Demand draft is one of the very important things because nowadays it is not a new one, it is a very previous old one. Demand draft बहुत जरूरी हो गया है। जहाँ पे कैश की बात नहीं होती, जहाँ पे चेक से व्यवहार नहीं होता, वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट से व्यवहार होता है। बिकॉज डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि आपने जो किसी को दिया है डिमांड ड्राफ्ट वो पेमेंट के लिए, तो उसका कमीशन बैंक लेती है और शेयर उसके अकाउंट में जाके वो जमा होता है। लॉटर फैसिलिटी बहुत ही जुना है। लॉटर फैसिलिटी नाउ डेज यू नो वेरी वेल,
बहुत सारी चोरियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं घर में, ज़्यादा सोना, प्रॉपर्टी के पेपर्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग नहीं रख सकते। तो बैंक क्या करती है, फैसिलिटी देती है कस्टमर को। कस्टमर जाते हैं वहाँ से लॉटर अवेलेबल करते हैं। बैंक इज सेफ चीज़ है, आपको लॉटर दिया जाएगा और उससे बैंक आपसे रेंट लेती है, और बैंक को फ़ायदा क्या होता है कि उसको रेंट मिलता है एंड बैंक विल गिव द फैसिलिटी। है जब भी जाओगे बैंक में जाके रजिस्टर में मेंटेन करोगे और आप बैंक से चाबी मांगोगे अपने लॉटर का, कोई सामान रखना है निकालना है वो आप कर सकते हो। और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट, ये सभी होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बैंक में प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फैसिलेबल स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। कभी तो कोई प्रोजेक्ट आपका रहता है, उसका रिपोर्ट बनाने के टाइम पे बैंक आपकी मदद करती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनेबल ए बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन द फंड। अगर आपको फंड चाहिए फ्रॉम मार्केट से तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के देगी। एंड ऑब्टेन द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्लियरेंस भी देती है कि यस दिस इज सर्टिफाइड दैट कि ये जो चीज़ें हैं मैं सर्टिफाई करता हूँ कि इनका जो हमारे यहाँ पे अकाउंट है और इनका अकाउंट में इतने बैलेंस है और आप इनको ये चीज़ दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्कूल चालू करना है तो स्कूल चालू करना है तो बैंक में अकाउंट होना चाहिए एजुकेशन सोसाइटी का। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर किसी को सर्टिफाई करना है, स्कूल चालू करना है तो कम से कम नहीं तो 15 लाख रुपये अकाउंट में होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल है। तो 15 लाख रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो कौन सर्टिफाई करेगा, बैंक का मैनेजर सर्टिफाई करेगा। फिर वो सर्टिफिकेट आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोगे और वो सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको स्कूल खोलने की परमिशन मिलती है। तो बहुत सारे इशू है, बट 15 लाख है कि नहीं ये नहीं मालूम, मैंने बस आपको एग्जांपल दिया कि क्लियरेंस ऑफ सर्टिफाइड जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को बैंक उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सर्टिफाई करती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है गिफ्ट चेक। नाउ गिफ्ट चेक मीन्स व्हाट, बैंक इशू द गिफ्ट चेक और गोल्ड एंड कॉइन्स अकाउंट होल्डर एज अ नॉन अकाउंट होल्डर ऑल्सो। द गिफ्ट चेक coins can be used the client for the purpose of gifting on the occasion like wedding and birthday. समटाइम आप देखते हो जब मैन ऑफ द मैच मिला, बहुत सारा बड़ा सा चेक आता है तो बैंक उसको देती है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। और कभी बर्थडे है, कुछ है, गिफ्ट वाउचर्स है, कोई चेक से पेमेंट है या किसी की शादी है, तो इस ऑन ओकेशन में चाहे वो अकाउंट होल्डर हो या ना हो तो कॉइन्स और गिफ्ट चेक ये बैंक इशू करती है और वो सब यूटिलाइजेशन फंक्शन में होता है। नाउ अंडर राइटिंग सर्विस में व्हाट, अंडर राइटर में जो अनसोल्ड शेयर्स होते हैं कंपनी के कभी कभी बैंक खरीद लेती है और फिर बैंक ही उसको बेचती है। तो ये फैसिलिटी आपको यूटिलिटी फंक्शन में हुआ है। कमर्शियल बैंक अंडर राइट इशू ऑफ सिक्योरिटी, अंडर राइटर मीन्स दो शेयर इज नॉट सेल्ड जो होता है उसको अंडर राइटर राइट रिटर्न फॉर्म में रखा जाता है। एंड इफ द शेयर आर नॉट फुली सब्सक्राइब, पूरी तरह नहीं सेल हुआ है तो अंडर राइटर बैंक एग्री टू टेक अप द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी शेयर्स के जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो बैंक ले लेती है। 6 पॉइंट है गोल्ड रिलेटेड सर्विस। ना यू नो तो आजकल बैंक तो गोल्ड लोन देना दे रही है, 50,000 रुपीज़ तो गोल्ड हो गया, दैट इज 10 ग्राम का 50,000 हो गया है। तो नाउ डेज कहीं देखो गोल्ड बैनर लगा है, उसका एडवर्टाइज भी आता है, मुथूट फाइनेंस का आता है, हर एक सेलिब्रिटी का भी आता है। सोना है तो रोना क्या रोना है। तो दैट मीन्स बैंक क्या करती है, ICICI बैंक हो गया, ये हो गया, यहाँ पे जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो रिलेशन वाले से, फ्रेंड्स से या किसी से लेके अपने घर में ऑर्नामेंट है तो वो हम लोग बैंक को देते हैं, बैंक हमको उस पर लोन देती है, वो यूटिलाइजेशन सर्विस में आता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम भरते हैं और जब हमारे पास पैसा आता है तो गोल्ड हम उसको बैंक से छुड़ा के अपने पास ले लेते हैं। तो जो नाउ डेज बैंक मैन प्रोवाइडिंग गोल्ड सर्विस इज कस्टमर बैंक आर कॉमर्शियल बाइंग सेलिंग द गुड्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब बैंक खरीदती भी है और बेचती भी है। एंड लार्ज स्केल बेसिस सम बैंक आर ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी कमेटी सर्विस टू कस्टमर ऑफ गोल्ड फंड एंड गोल्ड ETF ऑल्सो। गोल्ड फंड में भी होता है, जैसे आपने गोल्ड नहीं खरीदा तो गोल्ड फंड में पैसा आप डालो। गोल्ड फंड में क्या होगा कि जैसे जैसे आप पैसा डालते जाओगे, आपको सोना नहीं लेना है पर वो पैसा गोल्ड फंड में जाता है, जैसे आपका गोल्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा आपका फंड का वैल्यू बढ़ते जाएगा और आपको उसमें क्या होगा, फायदा आएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमर्शियल बैंक, जो मैंने आपको समझाया। वेरी IMP क्वेश्चन है, बोर्ड में समझो इस तरह आ गया है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, आप लोग देखते हैं बैंक है तो बैंक भाई ये सारी चीज़ें करती है फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock to 4 PM तक। तो ये आपको इन फ्यूचर कोई बैंकर बनना चाहता है तो बैंक में क्या करना है तो ये सब पढ़ लो आप, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बैंक में मुझे क्या करना होता है और आप एज अ बैंकर बनने के लिए माइंड में डेडिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट E-बैंकिंग सर्विस है, इसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, 7 पॉइंट्स हैं। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, और तब तक आप प्राइमरी फंक्शन का पूरा लिख के आप लोग इमेजेस भेजो फॉर अटेंडेंस के लिए, और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन के लिए ट्राई करो।
क्योंकि यू नो द पोर्शंस इज ग्रो हॉट, पोर्शन धीरे आगे बढ़ रहा है और पोर्शंस को आप लोग समझो, और कुछ भी तकलीफ होती है उसी में तो यू प्लीज़ कॉल मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।